अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। दिल्ली में मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी की रिहाइशगाह पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की मुलाकात। रियासत के तरक्याती कामों के हवाले से हुई बातचीत। किसानों को पानी नहीं, आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में रेवंत हुकूमत नाकाम। साबिक़ा वज़ीर KTR ने करीमनगर में लोअर मानेर डैम में पानी की सतह का जायजा लेने के बाद लगाए इल्ज़ाम। सिंगारेनी कंपनी का बुरा हाल, लेबर्स कम हो गए, प्रोडक्शन कम हो गया और मेयारी कोयला तैयार नहीं हो रहा है। रेवंत हुकूमत तवज्जो दे, BJP लीडर किशन रेड्डी का मुतालबा। मरकजी वज़ीर राम मोहन नायडू से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। 2 जून 2028 तक वरंगल एयरपोर्ट मुकम्मल कराने का दिलाया गया यकीन। ईरान पर मज़ीद शदीद हमलों का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां, कहा अब नाहर मुश्किल है और मुस्तक़बिल में भी खुली रहेगी। और तेहरान अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम में मुदाखिल की नहीं देगा इजाज़त। ईरान ने हुर्मुज़ के इंतज़ाम में अमेरिका के किसी भी किरदार की सख्ती से की तरदीद। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की रिहाइशगाह पहुंचकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की। शाहराहों और दीगर तरक्याती कामों के हवाले से मरकज़ के ताउन और दीगर तेलंगाना के उमूर को लेकर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से नुमाइंदगी की है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने करीमनगर में लोअर मानेर डैम में पानी की सतह का तफसीली मुआयना किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही से पानी का ज़िया हो रहा है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। जबकि हुकूमत दुरुस्त में इक़दाम करे तो पानी का तहफ़्फ़ुज़ और उसका सही और भरपूर तरीके से इस्तेमाल मुमकिन है। आइए देखते हैं KTR का ये बयान। लोअर मानेर नीళ్లు లేవు। ఇప్పుడు నేను సిరిసిల్లకెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు చూస్తే మిడ్ మానేర్లో నీళ్లు లేవు। మొత్తం గోదావరి సిస్టంలో మొత్తం గోదావరి బేసిన్ లో ఉండే ప్రాజెక్టులు అంతా కలిపి చూస్తే కూడా శ్రీరామ్ సాగర్ నుంచి మొదలు పెడితే మరి మిడ్ మానేర్ కావచ్చు, ఎల్లంపల్లి కావచ్చు, అన్ని మరి లోయర్ మానేర్ డ్యామ్ కావచ్చు, పైన రంగనాయక్ సాగర్ కావచ్చు, మలక్పేట్ రిజర్వాయర్ కావచ్చు, అన్నపూర్ణ రిజర్వాయర్ కావచ్చు, అనంతగిరి రిజర్వాయర్ కావచ్చు, పైన కొండపోచమ్మ కావచ్చు, మల్లన్న సాగర్ కావచ్చు, బస్వాపూర్ కావచ్చు, ఎందులో కూడా ఇవాళ 20% పైగా నీళ్లు ఎక్కడ కూడా లేవు। వాస్తవం ఏంది అంటే రోజుకు 9 TMCల నీళ్ళేమో కిందికి పోతున్నాయి। ఇవాళ LMDM నోరెళ్లు పెట్టి చూస్తున్నది కరీంనగర్ పట్టణంలో ప్రజలకి తాగునీరు దిక్కులేదు। ఈ LMD మీద ఆధారపడ్డ 8 కాన్స్టిట్యున్సీలకు కూడా మానకొండూరు కావచ్చు, ఉస్నాబాద్ కావచ్చు, చొప్పదండి కావచ్చు, హుజూరాబాద్ కావచ్చు, మరి అన్ని నియోజకవర్గాలకు కూడా రేపు తాగునీటి సమస్య కూడా తొందరలోనే రాబోతా ఉన్నది। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి మేము చెప్పేది ఒకటే, అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు రాజకీయంగా కక్ష నిన్నమొన్న అన్నావు కదా జైల్లో పెడతా, మేము ఒకరం మాట్లాడతలేదు, BRS పార్టీ మాత్రమే మాట్లాడతలేదు। ఇవాళ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు పెద్దలు దశాబ్దాల పాటు మరి ఈ రాష్ట్రానికి సేవలు అందించి ఇరిగేషన్ రంగంలో విశేషమైన అనుభవం పరిజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, మీరు బ్రహ్మాండంగా నడిపించవచ్చు అని చెప్తున్నారు। మీరు అడగొచ్చు ఎట్లా నడిపించవచ్చు అని। సింపుల్ గా మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ గేట్లతో సంబంధం లేకుండా, మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ తోని సంబంధమే లేకుండా పైన 18 కిలోమీటర్ల పైన ఉన్న కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ ఏదైతుందో అక్కడ గోదావరి ఇవాళ 1,00,000 క్యూసెక్కులు పోతున్నది। 2 పంపులు ఆన్ చేస్తే చాలు। అక్కడ కన్నెపల్లి దగ్గర పంప్ హౌస్ ఆన్ చేయాలంటే ఒకటే చిన్న కండిషన్ ఉన్నది। కండిషన్ ఏంది? 93.5 మీటర్ల మీదికెళ్ళి గోదావరి పారితే మీరు పంపులు ఆన్ చేయొచ్చు। ఇవాళ అక్కడ 97 మీటర్ల మీదికెళ్ళి పారకం ఉన్నది। మరి 3.5 మీటర్ల పైనకెళ్ళి గోదావరి ప్రవహిస్తుంటే అక్కడ బ్రహ్మాండంగా కన్నెపల్లి దగ్గర మేము పోయి చూసినాం, 1,00,000 క్యూసెక్కులు నీళ్లు పోతున్నాయి। రోజుకు 9 TMCల నీళ్లు మంచిగా బ్రహ్మాండంగా లోअर मानेर डैम निंपे नीళ్లున్నాయి। అక్కడ ఆ నీళ్లను నింపకుండా, నీళ్లను ఎత్తిపోయకుండా मरकजी वज़ीर राम मोहन नायडू से भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में राम मोहन नायडू ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि 2 जून 2028 तक वरंगल एयरपोर्ट के तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। రేవంత్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా కోరారు, జూన్ 2, 2028 ఏదైతే మన తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే ఉందో ఆ నాటికల్లా ఇది పూర్తి చేయాలని ఆయన చాలా స్పష్టంగా కోరితే అదే టైం లైన్స్ పెట్టుకొని శరవేగంగా అవసరమైతే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టైనా సరే కన్స్ట్రక్షన్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తూ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా టెర్మినల్ బిల్డింగ్ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాలూకు ఆలోచనలు తీసుకున్నాం।
बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि सिंगारेनी कंपनी का बुरा हाल है, लेबर्स कम हो गए, प्रोडक्शन भी कम हो गया है और मेयारी कोयले की तैयारी नहीं की जा रही है। हम इसके लिए तहरीक चला रहे हैं और भरोसा यात्रा की बीजेपी ने शुरुआत की। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की रेवंत हुकूमत सिंगारेनी कंपनी की बेहतरी के लिए दुरुस्त में इक़दाम नहीं कर रही है। सिंगरेनी कोल कंपनी लगातार बहुत सालों से चलते हैं। लगभग 137 इयर्स का पुराना कंपनी है। आजकल सिंगरेनी कंपनी क्राइसिस में है। कोल प्रोडक्शन कम हुआ है, कोल क्वालिटी कम हो गए, सिंगरेनी काम करने वाले वर्कर्स भी कम हो गए और सिंगरेनी की लगभग 54,000 रुपीस तेलंगाना सरकार देने का एरियर्स है। आज तेलंगाना सरकार भी जो पैसे देने हैं पैसे नहीं दे रहे। आज सिंगरेनी हर महीने सैलरी देने के लिए बैंक से ओवरड्राफ्ट लाना पड़ रहा है। ऐसी समय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सिंगरेनी वर्कर्स को, सिंगरेनी एरिया के रहने वाले जनता को भरोसा देने के लिए सिंगरेनी भरोसा यात्रा पर हम सुबह से सुबह सिंगरेनी एरिया से घूम रहे। उसके अंतर्गत आज भूपालपल्ली, वैसे ही ताड़ीचर्ला और मामगुंडम, कोत्तागूडम, मंचिर्याल, श्रीरामपुर ऐसे एक यात्रा कर रहे। इसके द्वारा सिंगरेनी वर्कर्स में विश्वास बढ़ाना, सिंगरेनी को जैसा पुराने एक अच्छा स्थिति लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा हम अलग अलग प्रयास कर रहे। उसके अंतर्गत ये भरोसा यात्रा चल रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के वोटर इंदराज के हवाले से बाद दावों के सामने आने के बाद तेलंगाना की सियासी फिजा में एक नई बहस छिड़ गई। बाद सियासी हल्कों और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों के मुताबिक रेवंत रेड्डी का नाम मुबैना तौर पर अचम्पेट असम्बली हल्का और कोडंगल असम्बली हल्के की वोटर फहरिस्तों दोनों में ही दर्ज है। इन दावों में कहा गया कि दोनों इंदराजात एक ही एपिक नंबर से मुंसलिक है। ये मामला इसलिए भी तवज्जो का मरकज़ बन गया क्योंकि इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक एक वोटर को अपने मुस्तकिल रिहायशी मुकाम के मुताबिक सिर्फ एक ही जगह वोटर के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए, जबकि एक से ज़्यादा मुकामात पर इंदराज की सूरत में मुतालिका हुकाम की जानिब से जांच और तस्दीक की कार्रवाई होती है। लेकिन फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि अगर वोटर फहरिस्त में किसी किस्म की मुमासिलत या दोहरा इंदराज मौजूद है तो आया वो किसी तकनीकी या इंतज़ामी ख़राबी का नतीजा है या इस हवाले से पहले ही कोई इक़दाम किए जा चुके हैं। ताहल चीफ मिनिस्टर के दफ्तर या फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन दावों पर कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल या वजाहत भी सामने नहीं आई है। ताहम इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंतखाबी हुकाम रिकॉर्ड की जांच के बाद इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर सकते हैं और अगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी पाई गई तो इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई मुमकिन है। तेलंगाना हुकूमत कर्नाटक की तर्ज पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट का निज़ाम मुतारिफ कराने संजीदगी से गौर कर रही है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबी ने दावा किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है जो इस तजवीज़ का जायज़ा लेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक मकतूब पेश करते हुए दरख्वास्त की गई थी कि रियासत में तवील अरसे से मुक़ीम अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से एक मेयारी मुस्तकिल रिहायशी दस्तावीज़ जारी की जाए ताकि इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी नज़रसानी मुहिम यानी SIR के दौरान रिहाइश के सबूत से मुताल्लिक़ मसाइल का सामना करने वाले वोटरों को राहत हो सके। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इस तजवीज़ पर आला हुकाम के साथ तबादला ख्याल किया और इम्कान है कि तेलंगाना में इसी तर्ज का निज़ाम नाफिज करने के इम्कानात का जायज़ा लेने काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी जाएगी। मोहम्मद अली शबी ने कहा कि मुजवज़ा PRC ऐसे शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से तस्लीम शुदा एक इजाफी दस्तावीज़ साबित हो सकती है जो SIR के दौरान या फिर मुस्तक़बिल में ज़रूरत पड़ने पर वोटर की अहलियत साबित करने के लिए इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। निज़ामिया यूनानी तिबी कॉलेज हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और मुतालबा किया है कि साल 2024 बैच के शफाफ नतीजों को फौरी तौर पर जारी किया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि 90 ने एग्ज़ाम लिखा जिसमें से 50 को फेल कर दिया गया जो सरासर नाइंसाफ़ी है और इसे शफाफ करते हुए दोबारा फहरिस्त को शाये किया जाए।
अस्सलाम वालेकुम, मैं बीओ में सेकंड प्रोफेशनल ईयर से हूँ और रिसेंटली हम लोग के जो रिजल्ट्स आए वो पहले तो बहुत डिले आए, 3 मंथ के बाद डिले आए और आने के बाद रिजल्ट्स ऐसे आए कि जो खाली हम लोग के क्लास की स्ट्रेंथ 92 है, उसमें से 90 जने अपीयर हुए थे एग्जाम्स में और उसमें से सिर्फ 5 जने हैं जो फर्स्ट इन क्लास में है, जस्ट पास में भी नहीं है। बाकी के स्टूडेंट्स पूरे 87 जो है उन लोगों का नेम कुछ भी नहीं है उन लोगों का। तो 87 जने कैसा, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि उन लोगों का ऐसा कैसा एक सब्जेक्ट में भी कैसा फेल हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये हुआ और मोस्टली जब हम लोग मेमो का मार्क्स अभी आए हम लोग के, तो जब हम लोग देखे तकरीबन तो उसमें बहुत पूरे ऑलमोस्ट जितने भी जने प्रमोट जो भी हुए सब जने एनाटॉमी में फेल है और हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा एनाटॉमी हम लोग पढ़े थे। एनाटॉमी में हम लोग को इतना कॉन्फिडेंट है कि दूसरे सब्जेक्ट में फिर भी देखेंगे, लेकिन एनाटॉमी सबसे अच्छा पढ़े, एनाटॉमी में तो फेल हो ही नहीं सकते। हम लोग उतना कॉन्फिडेंस है एनाटॉमी में फेल हो ही नहीं सकते एनाटॉमी में। और ये बताइए आप अब कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए थे एग्जाम में और कितने एनाटॉमी में फेल हुए और आप लोग का डिमांड क्या है? 90 जने, 92 स्ट्रेंथ है हमारी क्लास की, 90 जने अपीयर हुए थे एग्जाम में और उसमें से 5 जने पास है। बाकी के 87 जने 85 जने जो है उसमें प्रमोटेड है, थोड़े ऑलमोस्ट प्रमोटेड है, बस 1-2 सब्जेक्ट में अब आप लोग का प्रिंसिपल से अप्रोच हुए। क्या बताएं? प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप मतलब यूनिवर्सिटी से रहता वो जो भी रहता, मैं पेपर करेक्शन नहीं कर रही हूँ, मेरे को आके आप अप्रोच करें तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, आप लोग डायरेक्ट जो भी करना है यूनिवर्सिटी से करिए जो बोल के बोल रहे हो। इंक्वायरी बिठाते बोल रहे हो, मतलब उन्होंने बोल रहे मेरा कुछ भी नहीं है बोल रहे हो बहरहाल। वियतनाम में कश्ती हादसे के ताल्लुक से तफसीलात सामने आई है। मजमूई तौर पर 36 अफराद कश्ती में सवार थे, जिसमें से 17 अफराद को बचाने में कामयाबी हुई। इस हादसे के शिकार होने वाले हैदराबादी अफराद के हवाले से भी तफसीलात वियतनाम से हैदराबाद पहुँचने वाले एक मुसाफिर ने मीडिया को तफसील के साथ बताई। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तदिर है, जो वियतनाम के जो ग्रुप है वो ग्रुप में साथ में था मैं। हम लोगों का ऑलमोस्ट 2-3 डेस्टिनेशन से हैदराबाद से ऑलमोस्ट 22 मेंबर्स निकले थे यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से जो निकले उसमें कुछ भी कैजुअलिटीज़ नहीं है। वो इंसिडेंट के बारे में बोले तो वो क्या है, थोड़ा वेदर का भी थोड़ा वार्निंग था वहाँ पर और वो हवाएं ज़्यादा है, विंड ज़्यादा है बोल के भी जो है सो वार्निंग्स थे। अब उसमें क्या है, बोट पूरी क्लोज थी, वो ओपन बोट नहीं थी। क्लोज बोट रहने से क्या है, वो अगर पलट भी गई बोले तो बाहर निकलने के ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और उसके लिए, मगर फिर भी जैसे इंसिडेंट हुआ वो हम लोगों को एक एडवांटेज क्या था, हम लोगों को नज़र आ रहा था అది అయినప్పుడు కనిపించింది మనకు। हाँ, तो इमीडिएटली जो है सो यहाँ से हेल्प रेस्क्यू टीम को जो है सो इमीडिएटली जो है सो डिस्पैच करे। विदिन 5 to 10 मिनट्स वो लोग चले गए, लेकिन क्योंकि क्लोज बोट थी और अंदर लोग फंसे हुए थे, वो लोगों को निकालने के लिए टाइम लगा। ऑलमोस्ट कितना जने मर गया होगा? टोटल 36 मेंबर्स थे, जिसमें से 34 मेंबर्स हमारे टीम के थे और एक गाइड था और एक ड्राइवर था। कितना जने बच गए इसमें? इसमें रेस्क्यू जैसे 16-17 मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिए, 15 मेंबर्स डेड है उसमें। और डेड बॉडीज पूरा इधर है अभी वहीं है, वियतनाम में प्रोसेस चल रहा है, 1-2-3 दिन में लेके आते हैं। बोट निकलने के बाद कितनी देर में के बाद हादसा? बिल्कुल 5-10 मिनट में हुआ, 10 मिनट हमारे को नज़र आई ना बोट वहाँ से जिसको आई। रेस्क्यू करने में कितना टाइम लगा है? वो बिल्कुल 10 मिनट मालूम होते हम लोग बाजू की बोट में बैठ रहे थे, सवार हो रहे थे। तेलंगाना की एंटी करप्शन ब्यूरो ने पेदापल्ली म्यूनसिपालिटी के एक असिस्टेंट इंजीनियर को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी के दौरान लगभग 32 लाख रुपए की रकम बरामद हुई, जिसके बाद मामला मजीद संगीन शक्ल अख्तियार कर गया। गिरफ्तार अफसर की शनाख्त सतीश कुमार 33 साल शख्स के तौर पर हुई, जो पेदापल्ली म्यूनसिपालिटी में म्यूनसिपल असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद सतीश कुमार को करीमनगर में कायम खुसूसी एंटी करप्शन ब्यूरो अदालत में पेश किया गया, जहां कानूनी कार्रवाई की गई। एबीसी हुकाम के मुताबिक इस मामले की तमाम जावियों से तहकीकात जारी हैं और ये भी देखा जा रहा है कि आया मुलजिम अफसर के खिलाफ मजीद बदअनवानी या फिर आमदनी से ज़्यादा असासे के कोई सबूत मौजूद है या नहीं। हैदराबाद के कुकटपल्ली में वाक़ लुलु माल में उस वक्त हलचल मच गई जब एक शख्स के पास असलहा होने का इंकशाफ हुआ। इत्तलात के मुताबिक माल की पार्किंग में दो खानदानों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस दोनों फरीक़ैन को समझा रही थी कि इस दौरान पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स सिद्दीकी की जेब में मौजूद पिस्तौल पर पुलिस की नज़र पड़ी। पुलिस ने फौरी तौर पर
असलहा अपनी तहवील में ले लिया और इसकी जांच की, जिसके बाद मालूम हुआ कि पिस्तौल का लाइसेंस कानूनी और कारामद है। तहम पुलिस ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद असलहा रखने वाला शख्स मॉल के अंदर कैसे दाखिल हो गया। पुलिस के मुताबिक दाखिली दरवाजे पर सिक्योरिटी अमले ने मुनासिब तलाशी नहीं ली, जिसकी वजह से कोताही हुई। पुलिस ने सिक्योरिटी में लापरवाही बरतने पर लुलु मॉल इंतजामिया के खिलाफ एक केस दर्ज किया है, जबकि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात भी जारी है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सनसनी फैलाने वाले शाहबाद के सफ़ाकाना कातिल 29 साल राजकुमार की लाश बरामद कर ली है। मुकामी लोगों ने जिला रंगारेड्डी के इलाके कोत्तूर के करीब एक लाश देखी, जिसकी इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंची और तस्दीकी के मुताबिक कोई और नहीं बल्कि 6 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम राजकुमार है। तहाँ मुलजिम की मौत किन हालत में हुई है, उसकी मौत की असल वजह क्या है, इस बारे में भी तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई हैं। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर इस की तफसीली जांच शुरू कर दी है। और भाई नाज़िर करेंगे चंद अहम आलमी खबरों की जानिब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर मज़ीद शदीद हमलों का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर भरपूर हमले करेगा। ट्रंप ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त ईरान के लिए एक इम्तिहान थी, लेकिन ईरान ने इसकी पासदारी नहीं की। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि मेरी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ अच्छी हमांगी है, ताल्लुकात खुशगवार हैं। ट्रंप ने कहा कि बाज़ औक़ात इख्तिलाफ होता है, लेकिन मैं इससे आगाह करता हूँ। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि हम तेज़ी से ईरानी फ़ौज को तबाह कर रहे हैं। आपना हरमुज़ से मुताल्लिक़ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने कहा कि आपना हरमुज़ में जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में हम मदद कर रहे हैं वो उसके अखराजात में हमें मदद करें। इससे कबल अमेरिका ने आपना हरमुज़ की दोबारा नाकाबंदी का भी ऐलान किया था। ट्रंप ने दावा किया कि आपना हरमुज़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर अमेरिका को जाना जाएगा। आपना हरमुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फ़ीस भी ली जाएगी। Very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. But do you think a deal is still possible? Do you think they'll return to that? Yeah, I think a deal is possible. Sure, I do. We've done things that are unreal. $19.2 trillion. The money, they are crazy, and we're not going to put it up. Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world's supply. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, et cetera, including Israel, including Saudi Arabia, including Qatar, including UAE. We're protecting all of them, and we've done a very effective job. The whole thing happened, and it's, boy, it's tough. So we're doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago, and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years. और उधर दूसरी जानिब ईरान ने अपने हरमुज़ के इंतज़ामात में अमेरिका के किसी भी रोल की सख्ती के साथ तरदीद कर दी है। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया कि तेहरान अमेरिका को अपने हरमुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब इलाक़ाई तनाव में इजाफ़ा हुआ। ईरान अपने स्ट्रैटेजिक वाटरवेज़ पर मुकम्मल खुद मुख्तारी पर जोर दे रहा है। इसके अलावा ईरान के पासदार इनक़िलाब ने उर्दून के अवाम के नाम एक प्याम में कहा है कि उर्दून के अवाम अपनी सरज़मीन से अमरीकी ठिकानों के खात्मे का मुतालबा करें। आज उर्दू में अमरीकी फ़िज़ा अड्डे को निशाना बनाया गया जहां से ईरान पर हमले किए गए थे। बयान में कहा गया कि ईरान ने अमरीकी फ़ौज को उनकी कार्रवाइयों से जवाब दिया। ईरान को उर्दून या उसके अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है। बयान में कहा गया कि उर्दून के अवाम किसी भी दूसरी कौम की निस्बत फ़लस्तीनियों के दुख और उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को बेहतर तौर पर समझती है। उर्दून के अवाम सहयूनी रियासत यानी इसराइली जराइम से आगाह हैं, जिसने गज़ा में 20,000 बच्चों समेत 70,000 फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम किया, जो बराह रास्त अमरीकी मुदाखलत के साथ इसराइल ने किया है।
यूक्रेन समेत 10 ममालिक ने बैलिस्टिक मिसाइलों से यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से आलमी कायदीन की मुलाकातें हुई। फ्रांस के दारकूमत पेरिस में मुनक़िद इजलास में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और बरतानिया के लीडरों ने मुश्तरका तौर पर एलामिया भी जारी कर दिया। इस कोलिशन को इंटीग्रेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिशन का नाम दिया गया है, जो खालिसतन दिफाई नौयत का है। यूरोपीय बरआज़म की सलामती को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा। इस बयान में यूक्रेन के रूसी जारहियत के खिलाफ तजुर्बे की भी सताइश की गई है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। दिल्ली में मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी की रिहाइशगाह पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की मुलाकात। रियासत के तरक्याती कामों के हवाले से हुई बातचीत। किसानों को पानी नहीं, आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में रेवंत हुकूमत नाकाम। साबिक़ा वज़ीर KTR ने करीमनगर में लोअर माने डैम में पानी की सतह का जायजा लेने के बाद लगाए इल्ज़ाम। सिंगारेनी कंपनी का बुरा हाल, लेबर्स कम हो गए, प्रोडक्शन कम हो गया और मेयारी कोयला तैयार नहीं हो रहा है। रेवंत हुकूमत तवज्जो दे, बीजेपी लीडर किशन रेड्डी का मुतालबा। मरकजी वज़ीर राम मोहन नायडू से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। 2 जून 2028 तक वरंगल एयरपोर्ट मुकम्मल कराने का दिलाया गया यकीन। ईरान पर मज़ीद शदीद हमलों का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां, कहा अपना हुर्मुज़ खुली है और मुस्तक़बिल में भी खुली रहेगी। और तेहरान अमेरिका को अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम में मुदाखिल की नहीं देगा इजाज़त। ईरान ने हुर्मुज़ के इंतज़ाम में अमेरिका के किसी भी किरदार की सख्ती से की तरदीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।